Transformation is the process of horizontal gene transfer in bacteria. यहाँ पे कोई भी बैक्टीरियल सेल जो है अपना जो है प्लाज्मिड को सीक्रेट कर सकता है, एंड दैट नेकेड supercoiled DNA, piece of DNA that is present in the ambient atmosphere, और कोई competent या सेल है जो कि ये वाले नेकेड डीएनए को इनटेक कर सकता है। जो सेल नेकेड डीएनए को इनटेक कर लेता है, दैट सेल इज कॉल्ड अ competent cell. And after it has taken in after it has taken in the naked piece of DNA, then the competent cell is called a transformed cell. So this is basically transformation, which is basically intake of naked DNA by the bacterial cell. अब इससे बैक्टीरियल सेल जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक नए कैरेक्टरिस्टिक इनमें हो सकता है। ये जो डीएनए एंटर करता है, ये जाके ये बैक्टीरियल सेल में अलग से सर्कुलराइज होके प्लाज्मिड जैसा रह सकता है, या तो ये क्या करता है, बैक्टीरियल सेल में ये ऐसे प्लाज्मिड जैसा रह सकता है, या तो बैक्टीरियल सेल में इंटीग्रेट हो सकता है। So, these are the two fates which a naked piece of DNA can, um, inside the cell, it can either form a plasmid, or it can integrate with a chromosome. और जो क्रोमोसोमल इंटीग्रेशन होता है, ये इट ऑकर्स बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। पर ये जो है, दिस इज हाउ इट हैपन्स इन बैक्टीरिया। और इससे जो है बहुत ही हार्श कंडीशन में जब बैक्टीरिया ग्रो करता है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इट हेल्प्स टू गेन एडवांटेज व्हाइल लिविंग इन अ वेरी हार्श कंडीशन। बट हमारे लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। So, say for example, this is a bacterial plasmid, and certain portion of it, like this portion, it is not essential for us, but जो है हम अपना जो, say for example, this is our human gene, and uh, this is the portion that of gene of interest that we need to clone in bacteria, because we want massive production of these protein. तो हमारी जो gene of interest वो blue में है, एंड बैक्टीरिया की जो अननेसेसरी हमारे लिए अननेसेसरी पोर्शन है, दैट इज इन ग्रीन. So when we ligate this, say for example by restriction endonuclease, when we ligate this portion with restriction endonuclease, then and then join the plasmid portion with gene of our interest by ligase, then we get a recombinant plasmid. And also at the same time, हमको क्या करनी है, एक एक दो रिपोर्टर जीन्स उसमें ऐड करनी है, ताकि पता चले कि जो प्लाज्मिड है ये अगर कोई बैक्टीरियल सेल को ट्रांसफॉर्म कर रहा है कि नहीं. So this genetically engineered plasmid containing DNA of our interest as well as a reporter gene, so um, that is transfected in either to mammalian cell, या it is used to transform bacterial cell. अब इससे क्या होता है, बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो है, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी प्रोटीन्स तैयार करने लगता है इन मास. अगर ये ह्यूमन या कोई भी यूकारियोटिक सेल को ये वाला प्लाज्मिड ट्रांसफेक्ट कर रहा है, तो देन व्हाट हैपेंस, दिस पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट इट इज एक्सप्रेस्ड, एंड जो है इसकी भी जो प्रोटीन है उसकी मास प्रोडक्शन हो जाती है. So that is why transformation is very much important as a process of introducing the recombinant plasmid. Hello students, I'm Dr. Ayantika Das and welcome to Botany with Ayantika.
Here today I am going to discuss about transformation, जिसकी मैंने एक ओवरव्यू दे रखी है इन द फर्स्ट स्लाइड, बट अपकमिंग स्लाइड्स में मैं डिस्कस करने वाली हूँ दिस प्रोसेस इन डिटेल. So the process of transformation, it was first observed in Streptococcus pneumonia by Griffith. And ये जो genetic material है that transformed the bacterial cell into having many new characteristic, that material is a DNA. ये डिस्कवर किया था एवरी ने. सो जो ये अपना जो डीएनए है, that is naked piece of DNA, it is super coiled, and this supercoiling is very much essential. अगर एक linear strand of DNA रहती है तो that is more prone to attack by enzymes that is present in the ambient environment. So that is why supercoiled DNA is preferred. तो ये supercoiled DNA जैसे ही कोई बैक्टीरियल सेल के ऊपर आके बैठता है, the bacterial cell which intakes this DNA, naked piece of DNA, is called a competent cell. जैसे ही डीएनए अंदर जाता है, दैट competent cell is called a transformed cell. बिकॉज इसमें जो है डीएनए आ गई है और डीएनए की सारे जो भी जीन्स है इसके अंदर आ गई है, सो इट विल हैव some extra metabolic effect on the bacteria will show some phenotypic changes as well as metabolic changes. बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे हेमोफिलस, नीसेरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस, इन सब में जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही कॉमन देखा गया है अंडर लैब कंडीशन, एंड स्पेशली कॉमन इज द इकोलाई. अब ये जो है द कंप्यूटेंट सेल के अंदर जैसे ही डीएनए जाता है तो जो बाहर था ये वाली जो था, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड. जैसे ही अंदर जाता है ये वाला जो है, दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड. तो अंदर जाने के लिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है जा नहीं सकता है, दैट इज व्हाई न्यूक्लियस ब्रेक्स डाउन एंड अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटर्स. जैसे ही एंटर करता है इट हैज टू फेथ, आइदर तो इट इज इंटीग्रेटेड और इट रिमेन्स एज अ प्लास्मिड. अब जो है ये both the process, the gene of interest is expressed. अब जो ये एंटायर प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ द डीएनए, इसमें क्या चाहिए, एक तो डीएनए जो है वो बाइंड करता है कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो डीएनए रिसेप्टर्स से, एंड फिर जैसे ही ये बाइंड होता है देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ passage, that is type 4 या type 2 या ऐसे ही secretion channels जो है that will be transporting the DNA from the outer portion of the bacterial cell to the inside. अब हमको पता है कि जो ग्राम पॉजिटिव है एंड ग्राम नेगेटिव, दे हैव डिफरेंट थिकनेस इन देयर आउटर मेम्ब्रेन एज वेल सेल वॉल. जो ग्राम नेगेटिव है उसकी सेल वॉल काफी मोटा रहती है. उसकी सेल वॉल थ्रू में से जो पास करती है डीएनए, उसके लिए कुछ अलग से चैनल बनी रहती है जिसको बोलते हैं सीक्रेटिन. जैसे ही सेल वॉल से थ्रू द सीक्रेटिन डीएनए इज ट्रांसपोर्टेड, उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब इससे बोथ डीएन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों की ही प्रोसेस यहाँ से सेम होता है. सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है, सेल मेम्ब्रेन में टाइप 4, टाइप 2 या डीएनए ट्रांसलोकेज रहती है, जिससे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डीएनए जो है ट्रांसपोर्ट होता है. अब टाइप 4 इज ऑल्सो फाउंड इन कॉन्जुगेशन ऑल्सो, जो पाइलस होती है, दैट इज अ टाइप 4 secretion, and this type 4 secretion is also found while secreting exotoxins. So type 4 secretion, type 2 secretion and डीएनए ट्रांसलोकेज, ये तीनों ही क्या करते हैं, डीएनए को अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. पर
ये जो है ना, इसकी अपर सरफेस में एक डीएनए रिसेप्टर होना जरूरी है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। So after DNA is translocated, while it is getting translocated, इसमें एक न्यूक्लियस रहती है that issues a nick in one of the strand, and वो जो है one of the दो स्ट्रैंड रहती है, तो एक जो स्ट्रैंड है वो उसको न्यूक्लियस जो है डैमेज कर देता है, एंड द अदर स्ट्रैंड, ओनली सिंगल स्ट्रैंड एंटर्स द सेल। तो जैसे ही सिंगल स्ट्रैंड एंटर करता है, वी ऑल नो दैट इट इज आइदर सर्कुलराइज्ड और इट गेट्स इंटीग्रेटेड। सर्कुलराइज्ड प्लाज्मिड के जैसा ही रहेगा, फिर डबल स्ट्रैंड बना लेगा बाय रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। और अगर इंटीग्रेशन होता है बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, उधर जाके क्या होता है कि दैट वैसे तो प्लास्मिड अगर होता है तो भी ये स्टेबल रहता है, एंड अगर इंटीग्रेटेड विद द क्रोमोसोम तभी भी ये स्टेबल ही रहता है। सो जो डीएनए है, दिस इज द प्रोसेस हाउ द मतलब ये जो आउटर मेम्ब्रेन, ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस, इनर मेम्ब्रेन जो लास्ट स्लाइड में बता रही थी, तो वही थोड़ा डिटेल में है। अब जो ये जो इंटायर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी ये ओवरव्यू है। सो फर्स्ट, the supercoiled DNA attaches to the receptor when nuclease जो है uh, either it takes, जैसे ही ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस में आ जाता है, तो न्यूक्लियस जो है, वन ऑफ द स्ट्रैंड इज डिग्रेडेड बाय न्यूक्लियस, द अदर स्ट्रैंड एंटर्स। और इधर भी आके, इफ दिस इज इफ दैट डीएनए जो है, ये बैक्टीरियल डीएनए अगर नहीं होता, तो इट इज गेटिंग डिग्रेडेड। अगर बैक्टीरियल डीएनए होता है, देन इट इज आइदर इंटीग्रेटेड, या इट इट एक्ट्स एज एन इट एक्ट्स एज अ प्लाज्मिड। तो आइदर तो इट इंटीग्रेट्स, या इट एक्ट्स एज अ प्लाज्मिड। तो यहाँ पे दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। सो द आर्टिफिशियली ट्रांसफॉर्मेशन को हम इंड्यूस करते हैं, क्योंकि जो है हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम चाहते हैं कि बैक्टीरिया में ये एक्सप्रेस हो, और हमारे प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट मासिव प्रोडक्शन हो। तो इसके लिए जो है हम केमिकली और एज वेल एज इलेक्ट्रिकली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इंड्यूस करते हैं। केमिकली, बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट, जनरली 42 डिग्री C फॉर 60 सेकेंड्स के लिए। और इसकी जो है हीट शॉक से पहले मेम्ब्रेन को रिसेप्टिव बनाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, बहुत सारे कैटायनिक सॉल्ट्स जो है डालते हैं मीडिया में, एंड दिस improves द मेम्ब्रेन रिसेप्टिविटी ड्यूरिंग द हीट स्ट्रोक। और जो डीएनए होता है, दैट इज सुपर coiled, एंड ऑल्सो दिस इज अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड पोर्शन ऑफ प्लाज्मिड, जहाँ पे प्लाज्मिड की जो है मेन पोर्शंस रहती है, एसेंशियल जीन्स रहती है, और हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट रहती है, और एक मार्कर जीन्स रहती है जिससे हमको क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स की कॉलोनी को आइडेंटिफाई करने के लिए, एज वेल एज ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी देखने के लिए सुविधा हो। इसके अलावा जो है हम इलेक्ट्रोपोरेशन से भी इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जनरली 15 किलो वोल्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। पर यहाँ पे इलेक्ट्रोपोरेशन के टाइम में जो है टेम्परेचर बहुत ही कूल होना चाहिए, और जो केमिकल में हम एक्सेस आयंस देते थे, मेटल सॉल्ट्स देते थे, यहाँ पे वो नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ उल्टा होता है। अगर ज्यादा सॉल्ट्स डाल दिए, तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इसकी जो है ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी ज्यादा नहीं होता, कम हो जाता है। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द मीडिया वी आर यूजिंग while chemical induction, as well as by during electrical induction.
सो ये जो है हमारी जो रिपोर्टर जीन कैन बी एनी एंटीबायोटिक, ये कोई क्रोमोजेनिक भी हो सकता है रिपोर्टर जीन, जीन जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला भी हो सकता है, या इट कैन बी ऑल्सो क्रोमोजेनिक। से फॉर एग्जांपल कुछ जो है ऐसा बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला, बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला जीन अगर हम कर रहे हैं, तो इट विल जैसे ही हम एक्स गैल मीडिया में इस ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनी को ग्रो कर रहे हैं, सो ओनली द ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनी विल टर्न व्हाट, इट विल टर्न ब्लू, बिकॉज एक्स गैल जो है दैट इज एक्टेड अपॉन बाय बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और इसकी जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है दैट इज ब्लू इन कलर। सो आर्टिफिशियल जो इंडक्शन है, इसको जनरली अगर बहुत ही थिन वॉल ट्यूब में कर रहे हैं तो नॉर्मली 42 डिग्री सी करते हैं, या थिक वॉल्ट में थोड़ा कम टेम्परेचर में करते हैं। और जो है ये आफ्टर द इंडक्शन, आफ्टर द इंडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्टली इसको प्लेटिंग नहीं करते हैं, थोड़ा इंक्यूबेट करते हैं एसओसी मीडिया में। पहले तो एसओसी मीडिया में करते हैं, देन इट इज प्लेटेड। क्यों प्लेटेड एंड देन इट इज इंक्यूबेटेड? ये जो है एसओसी मीडिया में हम करते हैं ताकि बैक्टीरिया को थोड़ा टाइम लगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है डेवलप करने में थोड़ा टाइम लग जाता है टू इंटीग्रेट द बैक्टीरिया इनसाइड द जीनोम, या बैक्टीरिया अगर प्लाज्मिड फॉर्म कर रहा है तो सिंगल स्ट्रैंडेड से डबल स्ट्रैंडेड फॉर्मेशन होने के लिए तो तुरंत ही जो है हम वो अगर प्लेट में नहीं डालते हैं जहाँ पे हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट या कोई भी जो है मार्कर वाला, सिलेक्टिव मार्कर वाला अगर प्लेट में डायरेक्टली नहीं डालते हैं। ओके, एंड जो है हीट शॉक में अगर हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो ये सारे जो है आयंस डालते हैं, एंड इट इज देन स्टोर्ड टेम्पोररीली इन ग्लिसरॉल, जिसके बाद जो है प्लेटिंग होती है। प्लेटिंग होती है, फिर ये जो प्लेटिंग होती है दैट इज अ सिलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव मीडिया जैसे फॉर एग्जांपल एक्स गैल में, तो ऐसे कुछ सिलेक्टिव मीडिया में डालते हैं, बट दैट इज द एंड ऑफ द प्रोसेस। फर्स्ट तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, देन स्टोर्ड इन एसओसी मीडिया फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ आवर्स, देन वी डू इज द सिलेक्टिव मीडिया में प्लेटिंग। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं दैट रिड्यूस द ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी, जैसे हम सुपर कॉइल डीएनए ना डाल के अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डाल रहे हैं, या तो इलेक्ट्रोपोलेशन में कुछ सॉल्ट्स डाल दिए हैं। सॉल्ट वर्क्स फाइन फॉर केमिकल इंडक्शन, बट फॉर इलेक्ट्रोपोलेशन सॉल्ट हैज एन ऑपोजिट इफेक्ट। उल्टा जो है लाइगेज, जो जब हम अपना जो प्लाज्मिड है उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज अ रिपोर्टर जीन डालते हैं, तब लाइगेज की जरूरत पड़ती है। बट जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो वी शुड बी clearing out the ligase by washing the media several times with deionized water। तो ligase जो है ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में नहीं रहना चाहिए। ऊपर से फ्रीजिंग थॉइंग ज्यादा बार फ्रीजिंग थॉइंग की साइकिल्स हो जाती है, तो सेल उतना जो रिसेप्टिव नहीं रहता, उतना कॉम्पिटेंट नहीं रहता। तो इसके लिए क्या करना है हमको, जो है एक अगर फ्रीजर से निकाल भी रहे हैं क्योंकि इट इज स्टोर्ड इन -40 या टू 70 डिग्री, तो तो हमको जो है वो वाले सेल को थोड़ा दिन दिन ग्रो करके, दैट इज मोस्टली कॉम्पिटेंट सेल। हमको पता है कि बैक्टीरियल जो ग्रोथ होती है, तो जो ये लॉग फेज रहती है, ये वाली फेज रहती है, ये वाली फेज, तो इसी वाले स्टेज में ही ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी ज्यादा रहती है। तो वी शुड बी टेकिंग सेल फ्रॉम द लॉग फेज ओनली। ज्यादा बार फ्रीजिंग थॉइंग करेंगे तो उतना रिसेप्टिव नहीं रहती, उल्टा ये जो लॉग फेज से ही लेना चाहिए। एंड जो है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है एकदम आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट प्लेटिंग नहीं करनी होती है, पहले एसओसी मीडिया में डालते हैं, फिर जो है सिलेक्टिव
मीडिया में डालते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफेक्शन, सो बेसिकली ये सेम प्रोसेस है कि जो है प्लाज्मिड जो है इनसाइड द सेल, बट द ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में बैक्टीरिया जो है नेकेड डीएनए को टेक इनटेक करता है इनसाइड इट सेल। एंड ये जो ट्रांसफेक्शन है, ट्रांसफेक्शन ऑकर्स इन द प्लांट सेल। सो प्लांट सेल जैसे ही नेकेड डीएनए प्लाज्मिड को टेक कर रहे हैं, तो दैट इज ट्रांसफेक्शन। दिस इज ट्रांसफेक्शन। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? हमको पता है कि बैक्टीरिया दे लिव इन वेरी हार्श कंडीशन। कभी भी बैक्टीरियल की डीएनए डैमेज हो जाती है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस, जिससे कि डीएनए डैमेज जो है उसको रिपेयर कर सकता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो है इनकी पॉपुलेशन डायनामिक्स में अगर जैसे ही फ्लक्चुएशन होता है, तो by transformation it can maintain its population। सो ये बैक्टीरिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ये वाली मेन प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड है, इसमें जो है अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम डाल रहे हैं, और एक रिपोर्टर जीन डाल रहे हैं यहाँ पे लैगजेड। तो यहाँ ये सब जैसे ही हम डाल रहे हैं, तो उसके बाद जो फाइनल प्लाज्मिड प्रोडक्ट हुआ, तो दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड, दैट बैक्टीरिया इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय दिस। एंड यहाँ पे लैग जेड है, जो लैग ओपेरॉन फॉर जेड। सो ये क्या करता है, बीटा गैलाक्टोसाइडेज वाला एंजाइम तैयार करता है। दैट bacteria which has this lag set inside it will act on the gal gal media। जो gal है, when acted upon by galaxosides, they break down and ऐसे ऐसे ब्लू कलर के क्रोमोजेनिक प्रोडक्ट्स तैयार करता है। तो बेसिकली जो है we can put any gene of our interest along with this type of lagjet जैसे type of reporter genes, so that we can find out कि कौन सा colony transform हुआ है, and the colony that is transformed will be further selectively taken out and cultured। तो ये कल्चरिंग होने से हमें क्या फायदा, जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है, दैट विल एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर प्रोटीन विच इज वेरी एसेंशियल फॉर अस। जैसे कोई एंजाइम हो सकता है, कोई हार्मोन हो सकता है, या कोई प्रोटीन हो सकता है जिसमें जैसे हम हमारे में कोई म्यूटेशन हो गया है एंड वी कैन नॉट प्रोड्यूस सिंथेसाइज दैट प्रोटीन। सो we can get this protein from external sources if we cultured this इन बैक्टीरिया में ये कल्चर हो गया ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल में, और ये प्रोटीन जो है वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम दिस ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल। तो ह्यूमन के लिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, स्पेशली वी सफर फ्रॉम मेनी, से फॉर एग्जांपल वी आर डायबिटिक, सो इंसुलिन जो है हमारे बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो बैक्टीरिया के अंदर अगर हम ये वाला ह्यूमन जीन डाल देते हैं, तो बैक्टीरिया जो है इट विल प्रोड्यूस दैट ह्यूमन हार्मोन। इसीलिए हमारे लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है द ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल जीनोम जो है। इसके अलावा जो है ये कोई भी ट्रांसफॉर्म्ड सेल में ये मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अब ये जो मल्टीपल कॉपी ऑफ जीनोम हम यूज़ कर रहे हैं, इसको हम यूज़ करेंगे कहाँ पे? एक तो हमारे लिए लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंजाइम तैयार करने के लिए,
ऊपर से हमको अगर कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडी करनी है, जैसे हमको उसकी जीनोमिक सीक्वेंस पता करनी है, कोई लिंकेज स्टडी करनी है, या फर्दर जो स्टडी के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी तैयार करनी है, तो इसके लिए जो है अ, ये ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ वेरी गुड क्लोनिंग प्रोसीड्योर, बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी वी कैन गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ डीएनए टू वर्क विथ। सो ये रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होती है, सो हैव अ लुक एट दिस वन। सो दैट वाज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर है, बोथ बैक्टीरिया एज वेल एज ह्यूमन, दोनों के लिए ही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अ, जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर है, ये इसमें ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन भी आता है। कॉन्जुगेशन पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, एंटायर प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन, और जो भी टर्म्स एंड टॉपिक्स है, मैंने सब टॉपिक्स की रिलेटिंग टू कॉन्जुगेशन आई हैव पुट एन ओवरव्यू इन दैट वीडियो, और जो वीडियो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी है। माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड सारे जो वीडियोस है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब बिकॉज सब्सक्रिप्शन इज फ्री, बट it makes me very happy when you subscribe and encourages me. सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं अपने जो चैनल पे बायो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बोटनी रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो बनाती रहती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।